آپ سبھی تیار ہیں آج کے کلام کے لیے؟ اونچی آواز میں پھر بولیے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ کھڑے کھڑے بائبل مقدس کو دیکھیے۔ افسیوں کا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 22 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 22 آیت سے۔ جی بہن شازیہ پڑھیے اونچی آواز میں۔ اے بیویو اپنے شوہروں ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، جی، اور وہ خود بدن کو بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ آگے ہاں جی۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت رکھے، مل کر بولیے آمین۔ آمین۔ آئیے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے اور آج کے کلام کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ خاص طور پر آج کا میسج خاندانوں کی برکت کے لیے ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ایک خاندان خدا میں مطمئن رہتا ہے، پرامن زندگی جیتا ہے، تو وہ خاندان اپنے لیے جو بیج چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی اس کی نسل اسی گریس کو، اسی امن کو اور اسی اطمینان کو وہ ریسیو کرتے گئے اور اسی میں جیتے گئے۔ عزیزو، بائبل مقدس کی یاد رکھنا، ایک لائن تو بڑی بات ہے، صرف ایک لفظ بھی اپنے اندر اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بولیے آمین۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لفظ کو یا اسی بائبل کے نقطے کو وہ لوگ جو ڈس آنر کرتے گئے، وہ لفظ انہی کی زندگی کو رسوا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا جو میرے کلام کو سنتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہ کلام زندگی بھی دے رہا ہے، اور ایک جگہ پر یسوع مسیح نے کہا میرا کلام ہی تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی لفظ ہے، وہ یاد رکھنا سزاؤں کو بھی جاری کر رہا ہے اور وہ زندگی اور برکتوں کو بھی جاری کر رہا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج کے میسج کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آیت بڑی سمپل ہے، لیکن اسی کے اندر یاد رکھنا ہمارے خاندان کی برکتیں چھپی گئیں۔ اسی ورس کے اندر یاد رکھنا ہماری نسل جو ہے اس کا فیوچر بھی چھپا ہے۔ اب بائبل یہ کہتی ہے، افسیوں 5 کی 22 کو میں پھر سے پڑھوں گا۔ اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے کہ بولیے، کیسے بولیے؟ خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اور آگے جب آپ مرد کے فرائض پڑھتے ہو، وہاں پر لکھا ہے اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، ہسبینڈ کو جو فرائض دیے گئے ہیں ان میں یسوع مسیح کے کردار کو بھی دکھایا گیا ہے، اور ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کے متعلق جو فرائض دیے گئے ہیں اس میں بھی یسوع مسیح کو واضح دکھایا گیا ہے۔ اب سنیے عزیزو، ہمیں لگتا ہے، میں نے کہا یہ ورس بڑی سمپل ہے، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے کہا بائبل جب اس ورس کو ہماری زندگی کے ساتھ جوڑتی ہے تو دو چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 میں وائف اپنے ہسبینڈ کی کیا کرے؟ بولیے تابع داری کرے۔ بولیے اونچی آواز میں، تابع داری کرے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باتوں میں کہ سب باتوں میں تابع داری کرے۔ اور ہسبینڈ کو جب بائبل دیتی ہے، ہسبینڈ کو بائبل وائف کے لیے کیا کہتی ہے؟ اپنے جیسا اس کو پیار کر، جس طرح تو اپنے بدن کو پیار کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہا جس طرح یسوع مسیح نے کلیسیا سے پیار کیا اور اپنے آپ کو کلیسیا کے لیے دے دیا، کہا اسی کے جیسے پیار کر۔ آئیے عزیزو، اس ورس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک سٹوری کے وسیلے سے کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ پیدائش اس کا 27واں باب اس کی پہلی آیت کو، آئیے اس کو پڑھیں گے ذرا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے میرے ساتھ۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں
कि उसको दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसो को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख मैं ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। और आगे क्या लिखा है, सो अब तू जरा अपना हथियार, अपने तुर्किश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे क्या दूं, बोलिए, दुआ दूं। अजीजों, आज का जो मौजू है ना वो बड़ा खास है। आज का टॉपिक है द रिजल्ट्स ऑफ फेवरेटिज्म। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसे परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं जो ईमान की बुनियाद बना, जो बरकतों की बुनियाद बना, जो वादों की बुनियाद बना। और वो परिवार था इब्राहिम का। इब्राहिम से इसहाक, फिर याकूब। तो ये याद रखना, बरकतों की, वादों की और ईमान की ये परिवार बुनियाद है। क्योंकि इब्राहिम को ऐसी थोड़ी कह दिया गया कि तू ईमानदारों का बाप है। इब्राहिम ने हर तरह से जब वो आजमाया गया तो अपनी ईमान को उसने साबित किया। हमारी बरकतों की बुनियाद भी इब्राहिम है, क्योंकि इब्राहिम की बरकतें यीशु मसीह में से होकर बाइबल कहती गैर अकवाम तक जाती हैं। यीशु मसीह के साथ नजात का वादा है जो हमें हासिल होता है, लेकिन इब्राहिम के साथ बरकतों का वादा है। अगर कोई शख्स ब्लेस होता है तो वो वही बरकतें जो इब्राहिम को हासिल है ना, वो हासिल करता है यीशु मसीह में से होकर। अब सुनिए अजीजों, हम एक ऐसे परिवार का जिक्र कर रहे हैं जिसने, याद रखना, फेवरेटिज्म को अपने अंदर परवान चढ़ते देखा। अगरचे वो वादों का, ईमान का और मैं कह रहा हूं बरकतों का परिवार बना, लेकिन अफसोस ये है उस परिवार में फेवरेटिज्म ने वो नशोनुमा पाई, उसका इर्तिका हुआ, वो बड़ा फूला और उसी परिवार को फेवरेटिज्म ने तितर बितर कर दिया। वो कैसे, मैं यहां पर बताऊंगा। इसहाक, बाइबल कहती है, किससे प्यार करता, बोलिए, इसहाक किससे प्यार करता है? एसो से प्यार करता है। इसहाक का फेवरेट बच्चा कौन सा है? अब मुझे बताइए, रिबका का फेवरेट बच्चा कौन सा है? अब सोचो, दो ही तो बच्चे इस परिवार में, ये ज्यादा बच्चे नहीं है। बंदा बोले कि बहुत सारे बच्चे हैं तो चलो उन सबको छोड़ो, बस एक को ही प्यार करता हूं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, इसहाक ज़ईफ हो गया और लिखा है उसकी आंखें धुंधला गई, उसे सही दिखता नहीं था। उसने अपने बेटे एसो से कहा, मेरे पास आ, और कहा अपने हथियार ले जंगल में जा, मेरे मन पसंद का शिकार मार कर ला, खाना तैयार कर, मेरे पास ले आ और मैं खाऊं और तुझे क्या दूं? तुझे बरकत दूं, दुआ दूं। इससे पहले जब आप अजीजों जिक्र पढ़ते हो बाइबल में, जब जब बुजुर्गों ने अपनी औलाद को बरकत दी है ना, तो बाइबल में कई लोगों ने बरकत दी है और ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक को बरकत दी है। आप इसके बाद याकूब का जिक्र पढ़ते हो, उसने 12 अपने बच्चों को अल्फाज दिए और 12 का फ्यूचर बताया, किसी एक के साथ बात नहीं की। उसने 12 को ही चुना और 12 के साथ बात की। अब जब मूसा की जिंदगी को इख्तिताम पजीर होते देखते हो, लिखा है उसने भी इसराइल के 12 कबीलों को याद किया और नाम बनाम उनको बरकत दी। मैं बाइबल में जब इस स्टोरी को पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं, अजीजों, ये स्पिरिचुअल लोग होने के बावजूद क्यों बच्चों में फर्क करते हैं कि मेरा फेवरेट ये है, इसको बरकत मिलनी चाहिए और उसको नहीं मिलनी चाहिए। सोचो, रिबका का फेवरेट कौन है? याकूब। याकूब के लिए रिबका क्या चाहती है? एसो को ना मिले, किसको मिले? याकूब को मिले। सोचो इस परिवार में कैसी खिंचातानी है। ज्यादा बच्चे तो है नहीं। बाइबल कहती है जब इसहाक एसो से बातें कर रहा है तो लिखा है रिबका चोरी चोरी बातें सुन रही है। इत्तेफाक था वो बातें सुन रही थी कि उसे आदत थी, उसे आदत थी। जब जब बाप बेटा बैठते गए तो ये कहीं ना कहीं चौखट के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनती गए। इत्तेफाक नहीं था,
क्या आज बाप और बेटा बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और रिबका कहीं गुजर रही है तो उसने चाहे मगोइयां सुनी, उसने खुसर खुसर सुनी और खड़ी हो गई, ऐसा नहीं था। उसे आदत थी बातें सुनने की, और आज चोरी चोरी जब वो बातें सुन रही है तो अजीजों बाइबल कहती है हाँ, रिबका जब ये सुन रही है उसने कहा नहीं, ये सो को बरकत नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? मेरे फेवरेट बच्चे को बरकत मिलनी चाहिए। बाप कहता है मेरे फेवरेट बच्चे ऐसो को बरकत मिलनी चाहिए। अजीजों बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मामला बड़ा अजीब है। मैंने कहा ईमानदारों का वो परिवार है, और अफसोस के फेवरेटिज्म ने उस परिवार को याद रखना तितर बितर कर दिया। आगे जाकर हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते गए। अजीजों चाहिए तो ये था कि इसहाक अपनी वाइफ को बुलाता और कहता आज मैं एक खास मुद्दे पर तेरे साथ बात करना चाहता हूं, मेरे दिन करीब है, मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊं। मुझे बताइए अगर सच में इसहाक की बेस्ट फ्रेंड उसकी वाइफ होती तो क्या वो बात ना करता? क्योंकि स्पेशल मौका है, कोई आम बात नहीं है। अगर सच में इसहाक और रिबका के बीच में वो सच्चा प्यार होता तो इससे पहले कि वो बच्चों के साथ बातें करते, वो आपस में डिस्कस करते कि आज मैं कुछ करने जा रहा हूं, आज मैं किसी को बरकत देने जा रहा हूं। और रिबका कहती कि नहीं, दोनों को दे, किसी एक को ना दे। अगर वो आपस में डिस्कस करते तो रिबका उसका हल तजवीज करती, लेकिन ऐसा हुआ ही तो नहीं। हम बाइबल में ये पढ़ते गए जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से छुपा रहे गए, क्योंकि रिबका ये नहीं जाहिर करना चाहती कि याकूब याकूब नहीं है बल्कि ये एसो है। वो ये जाहिर नहीं करना चाहती कि दरअसल ये याकूब है, वो इसे छुपा के रखना चाहती है और उसे एसो बनाकर बाप के पास पेश करना चाहती है। और इसहाक, मैं कह रहा हूं, रिबका से छुपा रहा है कि उसे पता ना चले, बस हमारी आपस में बात है, तू जा और कुछ मार के ला। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती, वो आपस में प्यार मोहब्बत से बात करते तो इस मसले का हल निकलता? हाँ, बाइबल ये कहती है पिलोटों का हक दुगना होता था। तारीख गवाह है, हमें इस्तिस्ना की किताब में भी जिक्र मिलता है। खुदावन ने कहा जब भी किसी पिलोठे का हक दिया जाए तो उसे 70 या 80% दिया जाए, और जो बच जाए वो दूसरे को दिया जाए। और अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में से बड़े को ज्यादा दिया जाए पर दूसरों को भी दिया जाए। शरीयत तो ये कहती है। मैं ये कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर अजीजों, ये परिवार गलती कर रहा था। और जब सोचो इसहाक गलती कर रहा है और रिबका को समझ आ गई है कि वो गलती कर रहा है, तो मुझे बताइए क्या रिबका हक अदा ना करती अपने हस्बैंड को राय रास्त पर लाने के लिए? करती कि ना करती? लेकिन वो बाइबल कहती है अपनी खिंचातानी में है और ये अपनी खिंचातानी में है। और फेवरेटिज्म में कलाम ये कहता है उस परिवार को ऐसे दबाया, ऐसे जकड़ा, बाइबल कहती है उस परिवार की नींव को पकड़ के हिला दिया। हम पढ़ते गए इसहाक और रिबका, अजीजों बाइबल कहती है उसकी कौन सी ज्यादा औलाद थी? 2 ही तो बच्चे थे। लेकिन इसके बाद जब आप याकूब का पढ़ते हो ज्यादा औलाद है, लेकिन सबको देख रहे, कहता है ऐ मेरे बच्चों मेरे पास आओ, इससे पहले कि मैं चला जाऊं मैं तुम्हें बताऊं कि आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। पैदाइश 49 चैप्टर जो है ना, वो टोटल प्रोफेटिक चैप्टर है, क्योंकि 49 यानी 49 चैप्टर में याकूब ने मरने से पहले जो जो कहा वो सब उसकी औलाद के सामने आया, इसलिए उसे नबूवती चैप्टर कहा जाता है। हम बाइबल में ये पढ़ते गए अजीजों, हम यहां सीखते हैं कि इसहाक को ये साफ दिख रहा था कि मेरा वक्त करीब है, और उसे इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि मैं दोनों के लिए बरकत को तजवीज करूं। चलो एक को ज्यादा दूं क्योंकि उसका हक है, क्योंकि वो पिलोठा है। लेकिन वो याद रखना अजीजों, बाइबल कहती है अपने पिलोठे बच्चे को ही सारा कुछ देख कर जाना चाहता है। आइए जरा इसी की पैदाइश 27 की 15 को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना जरा। पैदाइश 27 की 15 में लिखा है, इसको देखिए। और रिबका ने अपने बड़े बेटे एसो के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे
लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल न थे लपेट दी, और वो लजीज खाना रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, है मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, तू कौन है मेरे बेटे? क्योंकि आवाज से दिख रहा था कि वो ऐसो नहीं है ना। आवाज से बाप को फर्क लग रहा है। तू कौन है मेरे बेटे? तो वो जवाब क्या देता है, मैं तेरा बेटा ऐसो हूं। उसने कहा, आवाज तो मुझे याकूब की दिखती है, याकूब की लगती है। अब बाइबल कहती है उसे पास बुलाता है, और ये सोचो शातिर मां, चालाक मां ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है ना। पूरा बंदोबस्त, सारे एविडेंस याकूब के गमा दिए, खत्म कर दिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई बाल नहीं था। और बाइबल कहती है ऐसो का बदन जो था वो बालों वाला था। उसने भेड़ की खाल उसके पूरे बदन पर लपेट दी। यानी ब्यूटी पार्लर में टोटल उसे ऐसो तैयार किया। ऐसा लगता है कि नहीं? बोलिए। वो अपने पार्लर में ले गई उसे टोटल, क्योंकि स्मेल भी जो आ रही है उससे ऐसो की आ रही है। बॉडी भी बन गई किसकी? ऐसो की। आवाज का हल नहीं हो सकता था, नहीं तो वो भी वो कर ही देती। लेकिन बाइबल अजीजों ये सिखाती है, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, सिर्फ फेवरेटिज्म की वजह से हम पढ़ते हैं अजीजों, ये परिवार खिंचातानी में है। और फेवरेटिज्म ने इस परिवार की बरकतों को अगरचे कायम भी किया, लेकिन किसी हद तक उन बरकतों को बिखेर भी दिया। 27 की 13 में क्या लिखा है, इसको पढ़िए जरा। 27 की 13 में लिखा है, अब मां ये कहती, बेटे ने कहा ऐसा ना हो कि जब मैं जाऊं तो वो बोले बाप आवाज याकूब की है और इस वजह से बरकत की बजाय मुझे लानत मिल जाए। मां क्या कहती है, 13 इससे पढ़ेंगे, तेरी लानत मुझ पर। उसकी मां ने उसे कहा है, मेरे बेटे तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। मेरी बात मान और भेड़ खाना से वो बच्चे मुझे ला दे। तेरी लानतें सारी मेरी होंगी और तेरी बरकतें तेरी होंगी। बाइबल अजीजों इस परिवार के बारे में सिखाती है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कितने खुदगर्ज हैं, सेल्फिश हैं कि नहीं? बोलिए। बाप कह रहा है छुपा के बरकत बस तुझे देनी है, मां कह रही है बस बरकत याकूब तुझको देनी है। और याद रखना इतना बड़ा मामला नहीं था, दोनों बैठते, अगर दोनों में बनती होती, दोनों के आपस में गुफ्तगू होती। बाइबल कहती है अजीजों, यहां ये पढ़ते हैं रिबका और जो इसहाक था, हम बाइबल में सीखते हैं दोनों इस मामले में बड़े खुदगर्ज हमें दिखे, क्योंकि दोनों ने अपने अपने बच्चों के लिए अजीजों प्लान किया। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ से ऐसे नहीं बोलता कि तेरे साथ मैं रहना नहीं चाहता, बस इन बच्चों की वजह से मैं रह रहा हूं? ऐसा सुना हमने समाज में, सिर्फ इन बच्चों की वजह से रह रहा हूं। अगर हस्बैंड ऐसा बोले तो इसका मतलब यह है वो अपनी फैमिली लाइफ में टोटल फेल हो चुका है। अगर वाइफ भी ऐसा बोले अपने हस्बैंड से कि तेरे साथ में एक सेकंड भी रहना नहीं चाहती, इन बच्चों की वजह से रह रही हूं, इसका मतलब है वो वाइफ भी अपने फैमिली लाइफ में टोटल फेल हो चुकी है। मुझे ये बताइए, दोनों के बीच में क्या वो बच्चे उनके जुड़े रहने की वजह है? अगर ऐसा है तो वो रिश्ता गलत बुनियाद पर है, क्योंकि बाइबल हस्बैंड और वाइफ के लिए जो बुनियाद ठहराती है वो क्या है? हस्बैंड वाइफ से प्यार करे। क्या करे? बोलिए। प्यार करे। और वाइफ हस्बैंड के लिए क्या करे? अपने ताबेदारी को जाहिर करे। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बुनियाद इन दो बातों पर रखती है कि वो उसकी ताबेदारी करती रहे और ये उससे मसीह की मानद प्यार करे। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग अजीजों गलत बुनियाद अपने लिए ठहरा बैठे हैं। और सच में देखा जाए अजीजों, हकीकत तो ये है कि सिर्फ पेपर वर्क होना बाकी है, बकाया तो रिश्ते अलग अलग हो ही चुके हैं, है ना? रिश्ते अलग अलग बोलिए हो ही चुके हैं। डिवोर्स का होना बाकी है, बकाया काम खत्म है। रिश्ते अजीजों
बाइबल मुकद्दस ये कहती है अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो इन दो चीजों पर होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए अपनी ताबेदारी को जाहिर करे, वो कभी बगावत ना करे, कभी सरकशी ना करे, वो कभी भी उससे इख्तलाफ राय ना रखे, उसकी सोच अपने हस्बैंड से अलग नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये जानता हूं अजीजों, जो घर का लीडर है ना वो हस्बैंड है, और हस्बैंड से ही खुदा बात करता है। रेवलेशन किसको देता है? हस्बैंड को। ड्रीम किसको देता है? हस्बैंड को। और यहां तक कि आइडिया फ्यूचर के लिए किसको देता है? हस्बैंड को, क्योंकि खुदा लीडर से बात करता है, खुदा चरवाहे से बात करता है। इसलिए तो बागी अदन में हवा से तो बात नहीं की, किससे बात कर रहा है? आदम से। ऐ आदम तू कहां है? ऐ आदम तू कहां है? वो अलग बात है कि आज का आदम सोया हुआ है, क्योंकि चर्च में तो होता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल अजीजों ये सिखाती है अगर आज का आदम अपने फराइज को समझ ले तो यकीनन उसकी वाइफ भी उसे प्यार करने को और उसकी ताबेदारी जाहिर करने को तैयार है। बोलिए आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसहाक और जब रिबका के परिवार का मुतालिया किया जाता है तो दरअसल इफ्सियों की किताब उनके परिवार के लिए जो बातें ठहराती गए उनसे तो वो कोसों दूर गए, क्योंकि अगर रिबका इसहाक की ताबेदारी करती तो करती क्या, वो अपने हस्बैंड के साथ उस प्लान का हिस्सा होती, और हस्बैंड भी अपने उस प्लान का उसे हिस्सा बनाता और कहता कि हम ये करने जा रहे हैं, और वो राय देती। क्योंकि आने वाले वक्त में भी और माजी में भी कभी ऐसा हुआ नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को ब्लेस किया जाए। हम बाइबल में ये पढ़ते कि 28 वर्ष में लिखा है, पैदाइश 25 की 28 को देखिएगा जरा, यहां पर देखिए क्या लिखा है। पैदाइश 25 की 28 में लिखा है, और इसहाक एसौ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। तो दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं करते? दोनों को क्यों नहीं करते? मुझे आप बताइए, क्या हमारे लिए बच्चे हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं, कि कोई हमें ज्यादा अजीज है और कोई कम अजीज है? हकीकत यह है, जब आप दाऊद के जिंदगी का मुतालिया करते हो तो यानी यस्सी के परिवार में तो दाऊद ही रिजेक्शन का मारा हुआ था। किसका मारा हुआ था? सारे बच्चे यस्सी के थे और एक जैसे होने चाहिए थे। और दाऊद को बाइबल कहती जब सैमुएल उसके घर में आया था उसके परिवार में से किसी को ब्लेस करने के लिए, तो सैमुएल ने कहा था अपने सारे बच्चों को अपने घर में रखना। तो दाऊद उसी परिवार का हिस्सा था। आप मुझे बताइए भाई यूनुस, अगर आपके घर में कोई वीआईपी पर्सन आए और वो आपको बोले आपकी फैमिली के सारे लोग घर में हो, मैं आऊंगा आपकी फैमिली में से किसी को ब्लेस करूंगा, आप अपने बेटे को भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे। यस्सी दाऊद को भूल गया। इत्तेफाक था कि उसे आदत थी भूलने की, उसे आदत थी, वो इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ये बड़ा मामला था। इसमें दाऊद को भूला गया। इसका मतलब है कि घर में जब भी कोई इवेंट होता दाऊद को भूला जाता था। यस्सी के लिए भी सारे बच्चे बराबर नहीं थे, और इसीलिए कलाम खुदा ये सिखाता है आज का एक मसीही परिवार इन सदाकतों और इन सच्चाइयों को सीख ले, क्योंकि मैंने अजीजों अपनी जिंदगी में हकीकत में दाऊद की तरह रिजेक्शन को बड़े करीब से देखा है। और तब मैंने ये फैसला किया था खुदा जब औलाद देगा ना तो ये वाला काम हम अपनी औलाद से नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब एक को सब कुछ मिले है ना और दूसरे को कुछ भी ना मिले। तो इसलिए बड़ा एहसास होता है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। और बाइबल अजीजों यहां इस परिवार के बारे में ये बता रही है, सोचो दोनों बच्चे हैं, इसहाक को भी अजीज होने चाहिए, रिबका को भी दोनों अजीज होने चाहिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ में इख्तलाफ राय क्यों है? ऐसा है? बोलिए, इत्तफाक राय है कि इख्तलाफ राय है? इत्तफाक राय है कि इख्तलाफ राय है? बोलिए, इख्तलाफ राय है। दोनों के बीच में टसल चल रही है, दोनों के बीच में मैं कह रहा हूं रेस चल रही है। अच्छा देखती हूं तेरे बच्चे को बरकत मिलती है, अच्छा देखती हूं कि मेरे को बरकत मिलती है। और बाइबल अजीजों ये सिखाती है, फादर ये चाहता है
کہ دونوں بچوں میں سے ایک کو برکت ملے، مگر یہ چاہتی دونوں میں سے میرے کو ملے۔ مجھے بتائیے پریوار میں ایسی کھچاتانی کیوں ہے؟ تو جواب آئے گا فیورٹزم کی وجہ سے۔ کیا جواب آئے گا بولیے؟ فیورٹزم کی وجہ سے۔ اس لیے عزیزو، جب فیملی کے لوگ مل بیٹھ کر کسی خاص مدے پر بات کریں تو اس کا حل جو نکلے گا نا، اس کا اثر سب پر ایک ہی جیسا ہوگا۔ اس کی برکتیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی وہ پھلدار حالت جو ہے سب کو ایک ہی جیسی میسر ہوگی۔ کسی ایک کو رونا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں ہم یہ پڑھتے گئے کھچتانی سے پورے گھر کا ماحول جو تھا اس وقت خراب ہو چکا تھا۔ ہم کلام خدا میں یہ سیکھتے گئے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ معرفت کی کمی تھی۔ کس کی بولیے؟ میرے ساتھ دیکھیے گا ہوشیار 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ ہوشیار کی کتاب اور اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، اور لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے معرفت کو رد کیا ہے۔ کس کو رد کیا ہے؟ یہ دونوں یاد رکھنا فارسی زبان کے الفاظ ہیں، معرفت بھی اور عدم بھی۔ جب کوئی چیز غیر حاضر ہے تو اس کے لیے عدم استعمال کیا جاتی، جیسے ایبسنٹ کہتے ہو مطلب وہ نہیں ہے، تو وہاں پر لفظ آئے گا عدم۔ اس لیے جب معرفت کی بات آتی ہے تو دراصل یہ ڈیوائن نالج کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا کی واقفیت کو۔ اور کلام یہ نہیں کہتا کہ جناب بیماری سے لوگ مر رہے ہیں، کلام یہ نہیں کہتا حادثہ ان کو مار رہا ہے، کلام یہ کہتا ہے لوگوں کے پاس میرے کلام کی واقفیت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے گئے۔ کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ بولیے۔ علم کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، جھوٹی ریت رواج کو مان رہے ہیں۔ عزیزو، بائبل یہ صاف کہتی ہے دراصل معرفت وہ یہ ہے جو بائبل ہمیں دیتی ہے۔ ہماری دنیاوی کتب کسی حد تک ہمیں شعور عطا کرتی گئے، لیکن دراصل صحیح جو شعور ہے نا وہ کلام خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ بولیے آمین۔ کیونکہ اس کے بغیر میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو نشہ کرتے بھی دیکھا ہے، شراب نوشی پیتے دیکھا ہے، زناکاری کرتے دیکھا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ پڑھے لکھے گئے ہیں، شعور ہے کسی حد تک، لیکن مکمل شعور جو آتا ہے نا وہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تبھی ان کی ڈیلیورنس ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں نشوں سے، وہ آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کے پاپ سے، کیونکہ کلام ان چیزوں کو ان کی زندگی سے پھر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بولیے آمین۔ اب مجھے بتائیے افسیوں 5:22 کے مطابق معرفت کیا ہے ایک وائف کی زندگی کے لیے؟ کہ وہ کیا کرے؟ تابعداری کرے۔ بولی اونچی آواز میں، وہ کیا کرے؟ معرفت کیا ہے ایک وائف کے لیے؟ وہ تابعداری کرے۔ اب معرفت ایک ہسبینڈ کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ پیار کرے۔ کیا کرے؟ میں نے ایسا دیکھا ہے وائف ہونے کے باوجود بیسٹ فرینڈ اس کی کوئی اور ہے، بیسٹ فرینڈ اس کی کوئی اور ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے ہسبینڈ ہونے کے باوجود بیسٹ فرینڈ کوئی اور ہے۔ لیکن اگر یہ سوچو دونوں آپس میں ہی بیسٹ فرینڈ ہو، ہسبینڈ کی وائف بیسٹ فرینڈ ہو اور وائف کا ہسبینڈ اس کا بیسٹ فرینڈ ہو، تو مجھے بتائیے برکتوں اور میں کہتا ہوں گریس کو اور جناب وہ ساری چیزیں جو انہوں نے آپس میں تابعداری اور پریم کر کے کمائی ہیں، کیا بچوں کو حاصل نہیں ہوں گی؟ بولیے، کیا بچوں کے لیے ایگزامپل نہیں ہوں گی وہ؟ آمین۔ ایسے بھی پریوار ہیں جن کے بچوں نے صرف اپنے ماں باپ کی لڑائیاں ہی دیکھی ہیں، جھگڑے ہی دیکھے ہیں، لیکن ایسا پریوار بھی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کی برکتوں کو دیکھے، اپنے ماں باپ کے پیار کو دیکھے۔ آمین۔ وہ آگے جا کر پھر گواہی دیں کہ میری ماں میرے باپ سے اس طرح پیار کرتی تھی، وہ کس طرح سے سیوا کرتی تھی، یا میرا باپ میری ماں کو کس طرح سے چاہتا تھا۔ ہمیشہ یہ عزیزوں کلیے کو یاد رکھیے گا جو افسیوں 5:22 بائبل مقدس میں بتاتی ہے۔ اونچی آواز میں بولیے آمین، ہاللیلویا۔ مان لو اگر اسحاق اور ربکا پہلے آپس میں یہ ڈسکس کرتے اور بعد میں بچوں سے یہ بات شیئر کی جاتی تو کیا مسئلے کا حل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں؟ بولیے۔ لیکن مسئلہ بعد میں بن گیا۔ اب مسئلہ اس طرح سے بن گیا کیونکہ کلام یہ کہتا ہے
کہ दोनों के बीच में दरअसल फेवरेटिज्म था। दोनों एक दूसरे को मान नहीं रहे, दोनों एक दूसरे की कोशिश से एक दूसरे पर गलबा पाना चाहते हैं। और कलाम इसलिए जब इसहाक और रिबका की जिंदगी को हमसे बयान करता है तो वो ये चीज सिखाता है कि दरअसल स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी वो गलती पर थे। गलती चाहे मैं करूं चाहे आप करो, गलती बोलो गलती है। इसलिए खुदा कभी भी गुंजाइश पैदा नहीं करता। आप हिजकिय्याह में पढ़ोगे, अगर सादिक गुनाह करे तो उसने कहा मैं उसकी सदाकत को भूल जाऊंगा, और उसने कहा अगर शरीर आदमी रास्ते के काम करे तो मैं उसकी शरारत को भूल जाऊंगा। इसलिए खुदा असूलों के साथ, खुदा याद रखना, अपने कवायदो जवाबत के साथ कभी भी समझौता नहीं करता। बोलिए आमीन। हम कर सकते हैं, वो नहीं करता। इसलिए अजीजो, कलाम खुदा के अंदर आइए जरा एक वर्स को पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 बाब की 7 आयत को देखिए मेरे साथ जरा। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो? नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। और आगे क्या लिखा है? यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है हस्बैंड औरत को नाजुक ज़र्फ जाने, इन्हीं की प्रैक्टिस करे। हाँ जी, चंड मुके दी उसे नाजुक ज़र्फ जाने। और एक चीज दूसरी बाइबल कहती है अक्लमंदी से उसके साथ वो जिंदगी बसर करे, और बीवियों के साथ वो अक्लमंदी से जिंदगी बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानो। और तीसरी चीज कहती है अगर तुम्हारे बीच में इख्तलाफ होगा तो तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी, तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये बात डेविल भी जानता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में इख्तलाफ होगा ना तो इनकी दुआएं कितनी भी करें वो ऑलरेडी रुक ही जाएंगी, क्योंकि बाइबल ने इस बारे में प्रोफेसी की है। ये बाइबल की बात है और इसे शैतान भी जानता है। इसलिए उनके बीच में कभी वो यूनिटी को परवान नहीं चलने देता। उनकी सोच को, उनके ख्याल को, उनके इरादों को हमेशा वो बिखेरे रखता है ताकि उनकी दुआएं रुक जाएं। अब शौहर को बाइबल पहली चीज क्या कहती है? बोलिए कि वो यीशु की तरह अपनी वाइफ को प्यार करे। नंबर 2 में बाइबल क्या कहती है? अक्लमंदी के साथ उसके साथ वो जिंदगी बसर करे। कैसे? उसे नाजुक ज़र्फ जान के। और अजीजों, इसके साथ जब आप पढ़ते हो एक और वर्ष को देखना, पहला कुरिन्थियों 7 बाब की 5 आयत में लिखा है तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो। यानी कि बुढ़ी किधर रहन दी तो बंदा किधर रहन है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों के बीच में गुनाह को मौका मिल जाएगा, दोनों के बीच में। इसलिए कलाम ये कहता है इससे पहले कि तुम पर नफ्स गलबा पाए, वो तुम पर गालिब आ जाए, तुम्हारे सेक्सुअल इमोशंस जो हैं वो तुम्हें डिस्टर्ब कर दे, तुम्हें फोकस लेस कर दें, उसने कहा इकट्ठे रहो। बोलो आमीन। बाइबल क्या कहती है? इकट्ठे रहो। तभी तो कलाम कहता है शौहर का बदन उसका अपना नहीं है, फिर किसका है? उसकी बीवी का। और बीवी का बदन किसका है? उसके शौहर का। अजीजों, कलाम खुदा की ये बातें एक परिवार के लिए नबूवत है। आमीन। एक परिवार के लिए बोलिए नबूवत है। उन्हें रेस्ट में लाने के लिए, उन्हें प्रॉस्पर लाइफ देने के लिए, उन्हें सक्सेसफुल लाइफ देने के लिए बाइबल की बातें प्रोफेसी हैं। और जितने लोग इस नबूवत से दूर रहेंगे ना, अपनी जिंदगी के लिए नाकामी का खड्डा वो खुद खोदेंगे। और याद रखिएगा, जब बाइबल कहती है अजीजों, ये छोटा सा बाइबल का मुख्तसर सा हिस्सा है, वाइफ अपने हस्बैंड को क्या दे? बोलो अपनी ताबेदारी दे। क्या ऊंची आवाज में बोलिए। और हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या दे? अपना प्यार दे, अपनी मोहब्बत दे। और मैं ये कह रहा हूं अजीजों, ये छोटा सा मुख्तसर सा बाइबल का किस्सा दरअसल परिवार की प्रोफेसी है, उस परिवार की, उस फैमिली की बरकत की नबूवत है। और जितने अक्लमंद लोग हैं ना, वो अपने परिवार की इब्तिदा, उसका आगाज और उसकी बुनियाद हकीकी तौर पर बाइबल के ऊपर ही डालेंगे।
क्योंकि कलाम ये कहता है घास मुरझा जाएगी, फूल कुमला जाएगा, और मेरा कलाम खुदा ने कहा ताहयात कायम रहेगा। ताहयात बोलिए। तो मुझे ये बताइए, जब खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा तो जिन लोगों की बुनियाद या जिन लोगों के परिवार की बुनियाद कलाम पर होगी तो क्या वो कायम नहीं रहेंगे? कायम रहेंगे। बोलिए। अजीजों, मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, आज खानदानों के बीच में ना इत्तफाकी क्यों है? आज फैमिलीज के बीच में, याद रखना, इख्तलाफ राय क्यों है? एक दूसरे को उस तरह से इज्जत नहीं दी जाती, ताबेदारी जाहिर नहीं की जाती, क्योंकि बोलो मार्फत की कमी है। किस बात की कमी है? मार्फत की। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर तुम अपनी बुनियाद को यहां कलाम पर डाल दोगे ना, तो आने वाला वक्त तुम्हारा सेम नहीं है। पैदाइश 27 की 20 को देखिए क्या कलाम कहता है। 27 की 20 को, पैदाइश 27 की 20 में लिखा है, तब इसहाक ने अपने बेटे इसहाक से कहा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे ये इस कदर कैसे जल्द मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। खुदा ने काम बना दिया कि मां ने काम बना दिया? बोलिए, किसने काम बना दिया? याकूब मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। 41 आयत को पढ़िए जरा, इसकी 27 की 41 को क्या लिखा है। और एसो ने याकूब से कहा, और एसो ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा। और एसो ने अपने दिल में कहा, मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। याकूब ने अकेली बरकत ली है कि एसो की नफरत भी ली है? उसने नफरत भी ली है। धोखे से जो चीज आएगी उसके साथ कुछ और भी आएगा। हमेशा लोग शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, मैंने हमेशा आपको कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो मेट्रो ट्रेन का सफर नहीं है कि 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी मैराथन दौड़ है, लंबी दौड़ है, और वफादारी से उसको दौड़ते दौड़ते उस दौड़ को खत्म करोगे तो याद रखना उस अजर के साथ कुछ और नहीं आएगा फिर। लेकिन अगर मेट्रो ट्रेन का सफर करके जल्दी से उस चीज को पाना चाहते हैं, फिर उसके साथ कुछ और भी आएगा। और ये सोचो, प्लान किसके लिए गया? एसो के लिए। और याकूब बीच में आया, बरकत ली, लेकिन क्या पाया? साथ में एसो की नफरत, और एक ऐसा प्लान जो उसको सफाई हस्ती से मिटा सकता है। एसो ने कहा, मेरे बाप के मरने के दिन करीब हैं, मैं इसे जल्द मार दूंगा। 42 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है जी? 27 की 42 को। और तब उसके बड़े बेटे अशोक की बातें बताई गई। हाँ, तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवा कर उससे कहा कि देख, तेरा भाई एसाउ तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोच कर अपने को तसल्ली दे रहा है। हाँ, तो आए मेरे बेटे, तो मेरी बात मान और उठकर हरान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा। आमीन। मेरे भाई लाबन के पास भाग जा। 45 वर्ष में, इसको 45 को भी पढ़ लेते हैं, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरे तरफ से ठंडा ना हो, उसने कहा वापिस ना आना। फेवरेट बच्चे को दूर दराज भेज दिया। और ये सोचो, इतना फेवरेट रहने के बावजूद दोबारा अपनी मां से ये मिल नहीं पाया। मिल पाया? मां तो पीछे मर गई। फेवरेटिज्म ने भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। फेवरेटिज्म ने हस्बैंड को वाइफ से अलग कर दिया। इनके बीच में खिंचातानी है, उनके बीच में खिंचातानी है। मुझे बताइए, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये नताइज जो इस परिवार के लिए निकले गए, क्या ये खुदाई हैं कि इनकी अपनी सोच से ये पैदा हुए गए? कलाम खुदा ये कहता है सिर्फ इसलिए कि ये परिवार स्पिरिचुअल होने के बावजूद फेवरेटिज्म में है, जबकि सारे के सारे बच्चे हमारे लिए बराबर होने चाहिए। और ये वाकया जो है ना अजीजों, आज की
खास तौर पर फैमिलीज के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, ताकि जब वो अपने बच्चों की परवरिश करते गए, तरबियत करते गए, तो वो बाइबल के इन वाकयात को मद्देनजर रख के उनकी तरबियत और परवरिश करें, ताकि हमारे बच्चे एक रहें। आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएं, लेकिन उन्हें कामयाब होते ना देखें, कामयाब होते ना देखें। कोई माँ बाप ऐसा चाहता है? कोई ऐसा चाहता है कि बाद में कोई बोले काश तेरी माँ होती और आज तुझे पायलट बना हुआ देखती तो बड़ा खुश होती? कोई ऐसा चाहता है? कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहता। हर परिवार ये चाहता है कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनकी कामयाबियों को भी अपनी आंखों से देखे। मुझे बताइए, जब याकूब बढ़ा, जब याकूब ने बरकत पाई, क्या रिबका देख पाई? क्या रिबका ने उसे दोबारा वो मिली? क्या रिबका ने अपने पोतों को खिलाया? क्या उसके अपने फेवरेट बच्चे के परिवार को बढ़ते देखा? हरगिज नहीं। इसलिए कलाम ये कहता है कि रिबका को अपने फेवरेट बेटे को वहां से भगाना पड़ा कि कहीं तेरा भाई तुझे मार ना डाले, तू उसके हाथों कहीं कत्ल ना हो जाना। अजीजों, याद रखिएगा, ये नतीजा खानदानी मोहब्बत और यगानगत की तबाही की सूरत में निकला। इसहाक कहा जाता है स्पिरिचुअल होने के बावजूद अपने परिवार में टोटल फेल हो गया। बाइबल में एक नहीं कई सूरमा हैं। एली फेल नहीं हुआ, दाऊद फेल नहीं हुआ, मूसा फेल नहीं हुआ परिवार में। इसलिए कहा यह जाता है औलाद जो हमें दी जाती है ना, हम उसके मालिक हैं कि मुख्तार हैं? बोलिए, हम उसके मुख्तार हैं। हमें बाइबल कहती है अपनी मुख्तारी का हिसाब भी देना पड़ेगा। जब आप 28:10 को पढ़ते हो, पैदाइश 28:10 को देखिएगा जरा, यहां पर क्या लिखा है। यहां हम ये पढ़ते हैं, और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। यह सफर याकूब पहले उसने कभी इस सफर पर वो नहीं निकला था, कोई ऐसी यात्रा उसने पहले नहीं की थी। ये सिर्फ उस फेवरेटिज्म की तबाहकारी थी कि याकूब को अकेले अपने घर से दूर दराज इलाके में जाना पड़ा। उसके मामू का घर था, और बाइबल ये कहती है वो इस वजह से कि ये सोचो, जब अजीजों हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं गए और वाइफ उसी को तजवीज करती है, फिर कहती है इससे पहले कि इसको मार दे, इसको भेज देते हैं ताकि वहां अपने परिवार में ये जाकर शादी करे। कलाम खुदा ये सिखाता है अजीजों, ये सदाकतें आज की कलीसियाओं को समझनी चाहिए, आज के परिवार को समझनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है एक ऐसा चहीता बेटा मीलों सफर करके वो पहुंचा अपने मामू के घर, लेकिन अफसोस ये है ना कि वो दोबारा अपनी मां से कभी मिल नहीं पाया, और लिखा है उसकी गैर मौजूदगी में ही उसकी मां वफात पा गई। इसलिए मैं ये कहता हूं, मां बाप के लिए कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने औलाद की बरकतों को भी अपनी आंखों से देखे। यहां पर 28 की 7 और 8 में क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे। 28 चैप्टर की 7, 8 और 9 इन वर्सेस को पढ़ते गए। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान अराम को चला गया, और एसो ने यह भी देखा कि किनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो एसो इस्माइल के पास गया और मोहलत को, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नबायूत की बहन थी, बया कर उसे अपने और बीवियों में शामिल किया। आपको नहीं लगता कि एसो ने अपने बाप को चढ़ाया? बाप को फेवरेट बच्चा बाप को चढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मां, अब ये भी तो चोरी चोरी बातें सुन रहा है ना, क्योंकि मां अपने बच्चों को कह रही है कि तू जा और अपने मामू के घर में शादी करना, और ये बात चोरी चोरी ये भी सुन रहा है, क्योंकि उसने कहा तेरे बाप को ये किनानी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। उसने कहा अच्छा, तो जो मेरी मां ने मेरे साथ किया चोरी चोरी, मैं भी चोरी चोरी वही करूंगा। और बाइबल कहती है वो इस्माइल के, क्योंकि इसहाक और इस्माइल वो आपस में स्टेप ब्रदर थे, लेकिन दोनों की बनती नहीं थी।
क्योंकि बाइबल कहती इस्माइल जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के लिए खुशी कर रहा है, इस्माइल उसे चढ़ा रहा है और इस वजह से इस्माइल को निकाल दिया गया। और लिखा है इस्माइल की लिखा है नस्ल में से किसी लड़की को ले आया ताकि अपने बाप को रोज चढ़ाया करे, रोज अपने बाप को उसका बीपी हाई किया करे। जरा ओनू 4 दिन बाद मरना है, वो छेती ना मरे, क्योंकि बीपी हाई होगा तो वो जाएगा। क्या फेवरेटिज्म ने किया इस परिवार में, है ना? क्या किया बोलिए? मां का फेवरेट बच्चा मां से दूर कर दिया, बाप का फेवरेट बच्चा बाप को चढ़ा रहा है, इसलिए कि उसे केनानी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अजीजों, इस परिवार के लिए जो रीजंस आए गए ना सामने, बाइबल कहती है वो सही नहीं थे, क्योंकि पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया गया। जब एसो को पता चला कि ये सारी प्लानिंग मेरी मां की है, तो मुझे बताइए, क्या उसने अपनी मां से कहा नहीं होगा, मां अगर मेरी मतरई मां मेरी जगह मेरे साथ ऐसा करती तो उसका तो बनता था, तो तू तो मेरी सगी मां है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तूने ऐसे क्यों किया? मुझे बताइए, क्या एसो को जब ये मामला पता चला होगा तो क्या उसका अपनी मां से मुंह उस तरफ नहीं हुआ होगा कि नहीं? और जब इसहाक को पता चला होगा कि दरअसल जिसको मैंने बरकत दे दी है वो तो एसो नहीं, वो तो याकूब है, और उसके पीछे रिबका है जिसने ये सारा किया है, तो मुझे बताइए, क्या इसहाक ने उससे झगड़ा नहीं किया होगा कि तूने ये क्या किया? पूरा परिवार फेवरेटिज्म की वजह से, मैंने कहा अजीजों, बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, तितर बितर हुआ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा अजीजों, बाइबल मुकद्दस का एक छोटा सा हिस्सा भी, मैं ये कह रहा हूं, हमारी जिंदगी को अफेक्टिव भी बना सकता है और बेअसर भी बना सकता है। क्या लिखा है? वाइफ क्या करे? अपने हस्बैंड के लिए ताबेदारी को जाहिर करे। क्या मुझे बताइए, रिबका ताबेदार थी? इस वाक्य से नहीं पता चलता। क्या इसहाक, जब बाइबल कहती है अपना हस्बैंड वाइफ से प्यार करे, मैं कहता हूं कुछ ऐसा सबूत नजर नहीं आता। पूरा परिवार कचरा होकर रह गया। अजीजों, कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो अपने बच्चों को तो चाहते हैं लेकिन अपनी वाइफ को नहीं चाहते, है ना? या कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो अपने बच्चों को तो चाहते हैं पर अपने हस्बैंड को नहीं चाहते। मुझे ये बताइए, क्या फल से प्यार किया जाए और पेड़ से नफरत की जाए? क्या ये मुनासिब है? पेड़ कौन है? वाइफ है जिसने फल पैदा किया है। पेड़ कौन है? जिसने फल पैदा किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस समाज में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने डिवाइन हेल्पर को, जो उनके ड्रीम को, उनके विजन को आसान कर सकते हैं, उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। मैंने ये देखा है, अगर मिडवाइफ ना हो तो औरत और बच्चे की जान खतरे में होती है। क्यों जी? ऐसा है, अगर मिडवाइफ ना हो तो बच्चे और औरत की जान खतरे में होती है। अब याद रखिएगा, एक प्रेग्नेंट औरत खतरे में है। क्यों? क्योंकि हेल्पर नहीं है। अब मर्द जो है ना, विजन उसको आता है, ड्रीम उसका होता है, और वो क्या है? अपने विजन से प्रेग्नेंट है, अपने ड्रीम के साथ वो प्रेग्नेंट है, और उसकी जो हेल्पर है ना, दरअसल वो उसके लिए मिडवाइफ का काम करती है। उसे वो डिलीवर करने के लिए, उसके उस प्लान को अमल में लाने के लिए, वजूद देने के लिए उसकी मददगार जो है ना, वो उसके लिए काम करती है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? इसलिए बाइबल इसके बारे में साफ हमें गवाही देती है, खुदा ने ये कुदरत औरत को दी है। मतलब अगर मर्द औरत को नफरत देगा तो औरत क्या करेगी? घर को दोज़ख बना देगी। घर को क्या देगी? दोज़ख बना देगी, क्योंकि उसके पास ये सलाहियत है कि वो थोड़ी चीज को बढ़ा देती है। अगर मर्द औरत को प्यार देगा, औरत क्या करेगी? घर को जन्नत बना देगी। आप बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मर्द एक बीज देता है, औरत उससे बेबी पैदा कर देती है। एक खुदाई उसके पास सलाहियत है। इसलिए कोशिश कीजिए, अपनी वाइफ को प्यार के साथ साथ उसे इज्जत दीजिए, उसे रुतबा और वकार दीजिए, क्योंकि कलाम इस बात की गवाही देता है कि जिन लोगों ने ऐसा
समाज में किया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर सेम नहीं देखा। बोलो आमीन। मैंने एक मर्दे खुदा को ये कहते सुना, अगर किसी क्रूसट पर मुझे बुलाना है और मेरी वाइफ को मेरे साथ नहीं बिठाना तो मुझे क्रूसट में कभी मत बुलाना। अगर ये सोचो कि मेरी वाइफ को आपने लोगों में बिठाना है और मुझे ऊपर बिठाना है तो मुझे कभी किसी कन्वेंशन के लिए, कभी क्रूसट के लिए इनवाइट न करना, क्योंकि मेरा मददगार मेरे साथ उसी इज्जत में जो खुदा ने मुझे दी है बराबर का शरीक होना चाहिए। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। बाइबल मुकद्दस का एक हिस्सा याद रखना हमारी जिंदगी को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली लाइफ को सिक्योर कर सकता है, ब्राइट कर सकता है। याद रखना उसे अंधेरे में भी डाल सकता है, उसे जवाल में भी डाल सकता है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने परिवार को कैसे चलाना चाहते हैं। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। आज के मैसेज को रिसीव कीजिए कि खुदावन जो इसहाक और रिबका ने किया, जो यसी ने किया अपनी औलाद के साथ, वो मैं ना करूं। और मेरे बच्चे हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ रहें, मेरे बच्चे हमेशा मेरी वाइफ के साथ रहें, दोनों हाथों के नीचे रहें और फ्यूचर इनका सेम ना रहे। बोलो आमीन। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया।